Hello dear students, welcome again in foundation series video. I am Rajiv Gupta. In last video we have concluded the chapter 1, that is solution. In this video we are going to start next very important chapter is chemical kinetics. Chemical kinetics means kinetics of a chemical reaction. This means rate of a chemical reaction. Clear? In class 11th thermodynamics chapter, suppose a reaction A plus B gives C plus D. Clear? This reaction is possible if del G gives free energy is negative. We have learned this in thermodynamics of class 11th. For spontaneous reaction means for a chemical reaction feasible when del G is negative. Spontaneous reaction means del G negative. Means this reaction occurs when gives free energy is negative. If gives free energy is positive, then this is non-spontaneous reaction. This chemical reaction is not feasible. Means in thermodynamics chapter we have learned feasibility of reaction. Means a chemical reaction is feasible होगा या नहीं होगा. Clear? In this chapter we are going to discuss if a chemical reaction occur, then whether it is a fast reaction, very fast reaction, slow reaction, very slow reaction. Clear? Means in chemical kinetics we are going to discuss rate of a chemical reaction. Clear? अब rate of a chemical reaction means, for example, ionic reactions. Ionic reactions are very fast reaction. 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 14 second required for the completion of ionic reaction. Clear? Ionic reactions require 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 14 seconds. Some molecular reaction like covalent reaction required some more time for completion. Rusting of iron is also a chemical change, required much more time for completion, very slow reaction. So in this chapter basically we are going to discuss reaction fast है या slow है. Clear? तो हम लोग डिस्कस करते हैं what is rate of a reaction. Rate of a reaction. For a reaction A plus B gives C plus D. For a chemical reaction, rate of a reaction is equal to change in concentration. Change in concentration of reactants. Change in concentration of reactants or change in concentration of products. This means with respect to time amount of A and B decreases. तो कितना डिक्रीज होगा with respect to time, in particular time interval, how much A and B decreases and how much C and D increases in particular time interval. This represents rate. टाइम के रिस्पेक्ट में A और B और C और D के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा with respect to time interval. Clear? This is time interval. Means suppose concentration of A at time t1 is A1. Concentration of A at time t2 is A2. Concentration of B at time t1 is B1. Concentration of B at time t2 is B2. Clear? Just like A and B, C and D, time t1 पे concentration of C is C1, time t2 concentration of C is C2. Then rate
rate with respect to A is change in concentration of A upon time interval, change in concentration of A, that is A2 minus A1 upon T2 minus T1। और आप सभी जानते हो कि A1 ज्यादा होगा A2 कम, बिकॉज रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस डेल A स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। तो दिस इज रेट विद रिस्पेक्ट टू A। एंड सपोज वी रिप्रेजेंट रेट with respect to B. Rate with respect to B is B2 minus B1 upon T2 minus T1. This means B भी reactant है, amount में कम होगा, minus del B upon del T. Clear? And rate with respect to C is C2 minus C1 upon T2 minus T1, T2 minus T1। and C इंक्रीज होगा, इनिशियली नहीं होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। दिस मीन्स ये पॉजिटिव होगा, डेल C अपॉन डेल T। क्लियर? एंड रेट विद रिस्पेक्ट टू D क्या हो जाएगा? डेल D अपॉन डेल T। क्लियर है? तो दिस इज रेट। ओवरऑल रेट अगर सबके साथ रिप्रेजेंट करें हम, तो इस रिएक्शन का रेट होगा, रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल A अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस डेल B अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल C अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल D अपॉन डेल T। This is rate of this reaction. Basically this is average rate. अभी हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज रेट मीन्स पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच के रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेट। तो इस रेट को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये आपने डिस्कस। सम एग्जांपल्स फॉर एवरेज रेट रिएक्शन। CO plus Cl2 gives COCl2. For this reaction, average rate means rate between some time intervals. तो average rate is minus del CO upon del T. Reactant change in concentration is negative, then minus del Cl2 upon del T is equal to del COCl2 upon del T. This is average rate of reaction. Clear है? For stoichiometric different stoichiometric coefficient, अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो, सपोज H2 plus Cl2, this gives 2HCl. This reaction means जिस रेट से हाइड्रोजन डिकम्पोज हो रहा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन, बिकॉज दोनों का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये वैल्यू बराबर है 1 बट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl is double of rate of decomposition of chlorine and hydrogen because stoichiometric coefficient 2 है। This means जिस रेट से हाइड्रोजन डिकम्पोज हो रहा है उसी रेट से क्लोरीन डिकम्पोज हो रहा है और उसके डबल रेट से क्या बन रहा है? HCl। क्लियर? सपोज हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल की बात करें। सपोज एक पर्सन ये है, ये 100 की स्पीड से दौड़ रहा है, ये पर्सन भी 100 की स्पीड से दौड़ रहा है और ये 200 की स्पीड से दौड़ रहा है। और अगर सबके रेट को हमको इक्वल साइन में लिखना है तो 100 तो ठीक है, जो 200 दौड़ रहा है इसको आप हाफ कर दोगे। क्लियर है? तब सबका रेट क्या होगा? बराबर। तो इस रिएक्शन का रेट आप कैसे लिखोगे? रेट मतलब एवरेज।
जब तक हम डेल लगा रहे हैं, दिस मीन्स वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एवरेज रेट. तो रेट इज माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल concentration of Cl2 upon del T is equal to 1/2 del HCl by del T. 1/2 means हमने बताया कि जो वन एंड 2, तो इसके जिस रेट से ये फॉर्म हो रहा है इसके डबल रेट से, और सबके रेट को अगर इक्वल करना है तो इसको क्या करना होगा, 1/2. Another example is N2 plus 3H2 gives 2NH3. For this, suppose ये 100 की स्पीड में है, ये 300, ये 200, सबको बराबर करना है. तो ये 100 है, ये 300 है, 1/3 करिए. ये 200 है तो 1/2 करिए. दिस मीन्स रेट मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल N2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू 1/2 del NH3 upon del T. This is average rate. Clear है? Means for a hypothetical reaction A, B, B gives C, C and D, D. For this reaction rate, average rate will be equal to minus 1/A del A upon del T. हम देख रहे हैं जो वैल्यू यहाँ है वो डिवाइड हो रही है. तो अगर आप सिंपल रिएक्शन के लिए लिखें तो माइनस 1/A डेल A बाई डेल T माइनस 1/B डेल B बाई डेल T. क्लियर? देन 1/C डेल C बाई डेल T एंड 1/D डेल D बाई डेल T. This is average rate reaction. Clear? So this is average rate. Average rate means अगर we are going to represent this average rate in terms of graph. हम अगर इसको ग्राफ के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, then आप देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे. This is concentration. Concentration of suppose reactant. This is concentration of reactant and this is time interval, time. तो आप देखो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस तरीके से कुछ करेंगे. बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज. सपोज कंसंट्रेशन इज सपोज हियर x1 and here concentration is x2. At time t1 concentration is x1, at time t2 concentration is t2, at time t2 concentration is x2. This means इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लिखें तो रेट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. दिस मीन्स क्या हो जाएगा, ये माइनस डेल x अपॉन डेल t, माइनस डेल x बिकॉज x1 इज मोर देन x2. तो दिस रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ फॉर एवरेज रेट. अब सपोज इसी को हम एक ऐसा ग्राफ ले लेते, यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करते. दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, concentration of product with respect to time. So this is the graph. Clear? Because product concentration increases with respect to time. Concentration of product increases with respect to time. Clear? So this is graph for the average rate of reaction and this is average rate of reaction. Clear? अब हम लोग डिस्कस करते हैं instantaneous rate of reaction. Instantaneous reaction rate. Instantaneous reaction rate. Instantaneous reaction rate means rate of reaction
at particular instant of time, not between two time, that is a time interval, at particular instance of time. Average rate means suppose आप रेट देख रहे हो 10 मिनट और 15 मिनट के बीच में, क्लियर, या 10 सेकेंड और 15 सेकेंड्स के बीच में. बट इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट आपको बताना है 10th सेकेंड पे रेट. तो द इंस्टेंटेनियस रेट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. यहां पे आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है. तो आपको क्या देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको देखना है इंस्टेंटेनियस रेट. मींस फॉर इंस्टेंटेनियस रेट आप ये कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज आई रेट, बार बार ऐसे लिख लेंगे, आई रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट when del t tending to 0. This means आप रिएक्शन को तो रोक नहीं सकते किसी पर्टिकुलर टाइम पे. पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम मींस वैल्यू ऑफ डेल टी बहुत ही कम है. तो बहुत ही कम मींस टेंडिंग टू 0, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम डेल टी 0 कर दें, टाइम इंटरवल 0 टेंडिंग टू 0 कर दें, तो that will be instantaneous rate of reaction. This means अगर आपको इस रिएक्शन का रेट लिखना है A, B gives C and D, तो आप अगर एवरेज रेट लिखोगे, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल A अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस डेल B अपॉन डेल T इज इक्वल टू del C upon del T is equal to del D upon del T. This is average rate. Clear है? Instantaneous rate for this reaction will be minus del A upon del T when del T tending to 0 is equal to minus del B upon del T when del t tending to 0 is equal to del C upon del t when del t tending to 0 is equal to del D upon del t when del t tending to 0. So this is average instantaneous rate. And आप सभी जानते हो कि जब डेल की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो डेल को डिफरेंशियल मींस डी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो आप इसको क्या लिख दोगे, माइनस डी ए बाई डी टी. क्लियर? चूंकि ये वैल्यू बहुत कम होगी तो इसका चेंज भी क्या होगा, बहुत कम. तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी. तो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट. तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो वहां पे डेल था वहीं यहाँ पे क्या है, डी. तो इंस्टेंटेनियस रेट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. अब यहाँ पे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे फॉर इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट में सपोज दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. सपोज दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज टाइम. क्लियर? तो इस केस में अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट के केस में ऐसा आएगा. ठीक है? तो अब एवरेज तो ठीक है, बट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो आपको यहां स्लोप देखना पड़ेगा. सपोज एट दिस केस, ठीक है, एट पॉइंट P, सपोज एट पॉइंट P आपको देखना है. एट पॉइंट P आपको इंस्टेंटेनियस रेट देखना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा. स्लोप सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B. क्लियर है? तो
रेट हम यहां पे लिख देते हैं रेट एट पॉइंट P। रेट एट पॉइंट P क्या होगा? स्लोप के बराबर। स्लोप इज इक्वल टू OA बाई OB। तो फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्लोप। और स्लोप कैलकुलेट करने का मतलब स्लोप इज OA बाई OB एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। अब हम जरा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और इसके बारे में और बात देखते हैं। नेक्स्ट इज थियोरेटिकल टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो बिफोर डिस्कसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। दिस मीन्स कंसंट्रेशन की यूनिट क्या थी? मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी अपॉन टाइम, टाइम सपोज सेकेंड, तो मीन्स मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोल पर लीटर पर मिनट और पर आवर, जिस यूनिट में दिया गया हो वो हो जाएगा रेट का यूनिट। क्लियर? देन ये थियोरेटिकल टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोग इसको थियोरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, आप वीडियोस को पॉज करके नोट्स बना सकते हो। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिसाइड्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज अगर रिएक्टेंट के अंदर देयर विल बी बॉन्ड पोलैरिटी। हमने कहा आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट बिकॉज ये इजिली वाटर में डालते ही टूट जाते हैं। जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन विल बी मोर फास्टर। क्लियर? तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। मींस जैसे जैसे रिएक्टेंट के बॉन्ड्स वीक होते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। क्लियर? देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, we will discuss further in this chapter collision theory of reaction rate. This is very important topic, collision theory of reaction rate. Collision theory of rate. This means when reactant molecules are taken for reaction, they collide with each other, and after collision bonds of reactant ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दिस कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो अभी तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो अभी ये बताते हैं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज देन पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन उतना ज्यादा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ज्यादा and higher the rate of collision, higher will be the rate of reaction. Clear? Then temperature. Temperature is very important factor for reaction rate. In general हम लोग कहते हैं in general for a chemical reaction means temperature dependent chemical reaction. In general every 10 degree rise in temperature, इसको भी इस चैप्टर में आगे अभी डिस्कस करना है। अभी चूंकि ये चैप्टर आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल आगे फिर बात करनी है इसी चैप्टर में। इन जनरल एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कॉजेज रिएक्शन रेट डबल और ट्रिपल। Every 10 degree rise in temperature causes reaction rate double or triple. Means in general after increasing temperature rate of reaction increases because again after increasing temperature possibility of collision increases.
because kinetic energy of reactant molecules increases. This means after increasing temperature, rate of reaction will increase. Then surface area. Surface area increases, rate of reaction increases again because more collisions possible. When surface area increases, then more number of collisions are possible. Surface area increases, rate of reaction increases. Means ultimately ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर कोलिजन पे डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको हम इसी चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे इसी में. क्लियर? देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज फैक्टर कैटलिस्ट. क्लियर? तो लेट अस डिस्कस हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट मीन्स it alters the rate of reaction. Alters rate. Positive catalyst increases rate of reaction and negative catalyst decreases rate of reaction. Generally हम positive की बात करते हैं. Positive catalyst increases rate of reaction. Positive catalyst increases rate of reaction. How? By decreasing activation energy, by lowering down activation energy. Positive catalyst always increases rate of reaction by lowering down activation energy. What is activation energy? How catalyst lowers down activation energy? तो this is मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक एक्शन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी बात करते हैं कैसे ये यहाँ करता है. तो चलिए हम देखें. दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट वाई एक्सिस, दिस इज कोर्स ऑफ रिएक्शन मींस कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एट एक्स एक्सिस. दिस इज ई एवरेज. ई एवरेज मींस एवरेज एनर्जी. ई एवरेज इज एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज एनर्जी है दैट इज कॉल्ड ई एवरेज. एंड दिस पीक इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी रिएक्टेंट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट. किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज threshold energy. Suppose threshold energy is represented by ET. Clear? Then difference between threshold energy and average energy possessed by reactant molecule is activation energy. EA is called activation energy. EA is called activation energy. So what is activation energy? Activation energy is difference between average energy possessed by the molecule and threshold energy. So this is activation energy. Means this much energy is required to change into product and actually this much energy आपके पास है reactant के पास. This is average and this much is required. This difference is called activation energy. अभी क्लियर है एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा बिकॉज एनर्जी बैरियर. एक्टिवेशन एनर्जी को आप कह सकते हो इट इज एन एनर्जी बैरियर. किसके बीच में? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के बीच में. दिस इज एन एनर्जी बैरियर. क्लियर? और आप देखो दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी. सपोज ए एंड बी आर रिएक्टेंट, सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स. तो दिस इज डेल एच. डेल एच इज रिएक्शन, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन. Del H is enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction represented by del H. Clear? Then suppose without catalyst this is activation energy. The function of catalyst is to lower down activation energy. Ab when we use catalyst, without catalyst this is activation energy represented by red line. When we use catalyst this is blue line and this represent activation energy with catalyst. This is activation energy and this is activation energy without catalyst. So when activation energy lowers down then
रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फास्ट। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। दिस मीन्स EA low reaction is fast reaction because EA जितना कम, ये बैरियर, ये पहाड़ जितना नीचे, उतना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड EA हाई, दिस मीन्स स्लो रिएक्शन। EA हाई स्लो रिएक्शन, EA लो फास्ट रिएक्शन। क्लियर? तो कैटलिस्ट फेवर रिएक्शन rate by lowering down activation energy. So this is all about factors affecting rate of reaction. Clear? Next is law of mass action or Goldberg and Waage law. Goldberg and Waage law connects rate of reaction with concentration. Means there is a relation between concentration of reactant with rate of reaction. उसी रिलेशन को डिफाइन करता है लॉ ऑफ मास एक्शन और गुलबर्ग एंड वागे लॉ। दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली ये थोड़ा अलग आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, हम लोग इसको देखते हैं। गुलबर्ग एंड वागे लॉ में ये बताया गया है, फॉर अ रिएक्शन सपोज A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of active masses of reacting species। अब अगर सपोज रिएक्शन ऐसा होता A प्लस B दिस गिव्स प्रोडक्ट, तो इन दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power A, B to the power B। means rate of reaction directly proportional to product of active masses of reacting species with each reacting term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient। Rate of a chemical reaction directly proportional to product of active masses of reacting species with each reacting term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient। तो what is active mass? Active mass हम लोग ने अभी कहा था कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां जान लें सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकन डू नॉट अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन टू फॉर्म प्रोडक्ट। ओनली फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। दिस मीन्स number of collision suppose 100, तो out of 100 collision fraction of collision like 10, 5, 20 fraction of collisions are effective in nature and only effective collision can form product। तो जितने रिएक्टेंट का मास जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकता है, दैट इज एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। And active mass decides rate of reaction, not the whole concentration of reactant या whole mass of reactant decide rate of reaction, because all the molecule of reactants do not collide effectively to form product. Only fraction of total collisions are effective in nature and that effective collision decides rate of reaction। तो active mass means इफेक्टिव कोलिजन, जितने मास रिएक्टेंट के इफेक्टिव कोलिजन में जाते हैं दैट विल बी एक्टिव मास। बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग जो कंसंट्रेशन यहाँ लेते हैं इसी को यहाँ ले रहे हैं। इसका मतलब हम ये थियोरेटिकली कह रहे हैं कि टोटल कोलिजन्स डिसाइड्स टोटल ऑल द कोलिजन मींस ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट decides rate of reaction। इसीलिए मैंने कहा इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा अलग आता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार,
rate of reaction directly proportional to product of active masses of reactant, with each reactant term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. Clear? Then हमने कहा active mass, this represent active mass. Active mass means mass of reactant undergo effective collision, जो कि अभी हम आगे डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर इफेक्टिव व्हाट आर इनइफेक्टिव कोलिजन्स किसी चैप्टर में आगे. क्लियर? तो दिस इज थियोरेटिकल फेनोमेना, लॉ ऑफ मास एक्शन. क्लियर? अब इसी के जैसा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज रेट लॉ. व्हाट इज रेट लॉ? जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है इन लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन मींस theoretical dependence of rate of reaction over concentration of reactant, but in case of rate law this is experimental dependence. Experimental dependence of rate of reaction over concentration of reactants. This is experimental dependence. Means what is experimental dependence? A plus B suppose gives product. A and B gives product. So according to law of mass action, rate is equal to K A to the power A, B to the power B. But according to rate law, K A to the power P and B to the power Q, and A not equal to P, B not equal to Q. This means according to law of mass action, A and here power A, this means this whole reactant concentration decides rate. बट हमने कहा था ओनली फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स आर इफेक्टिव इन नेचर. तो इन दिस केस ए नॉट इक्वल टू पी मीन्स जितना कंसंट्रेशन आपने लिया है उसमें से सम कंसंट्रेशन अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन एंड डिसाइड्स द रेट. तो दिस इज कोलिजन अंडरगो इफेक्ट, दिस इज इफेक्टिव कोलिजन एंड इफेक्टिव कोलिजन डिसाइड्स द रेट. तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो इसके लिए अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट. अब A B C पता नहीं कितने हो सकते हैं, तो रेट अपॉन कंसंट्रेशन. अगर सारे कंसंट्रेशन, इफ ऑल द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी, सपोज ये आपने ले लिया all the concentrations taken as unity, then K is equal to rate. तो K can be defined as when concentration of reactants taken as unity, then rate of reaction is rate constant or specific rate constant. K is known as rate constant or specific rate constant, and K is very important topic. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. ठीक है? तो अब हम लोग जरा देखते हैं व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. तो यूनिट मींस आप देखो K इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन. पता नहीं कितने रिएक्टेंट होंगे, सबके कंसंट्रेशंस को लेना है. तो कंसंट्रेशन टू दी पावर n कर दिए, पता नहीं कितने हैं. मींस एक जनरल यूनिट हम निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ n अगर नोन है तो आप यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे. K इज इक्वल टू रेट दैट इज मोल पर लीटर एंड रेट यूनिट इज पर सेकेंड पर मिनट पर आवर, जो भी लिखो. यहाँ पे मोल पर लीटर टू दी पावर n. दिस मीन्स K इज इक्वल टू, इसको ऊपर कर दीजिए तो आ जाएगा मोल पर लीटर टू दी पावर, ये आ जाएगा 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स. इसको और आगे देखो तो आ जाएगा मोल
1 minus n, liter n minus 1 and second inverse. Clear? एक यूनिट ये आ गए, दिस इज यूनिट ऑफ K. फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स, फॉर गैसियस स्टेट, अगर स्टेट गैसियस है तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, PV इक्वल टू nRT, मीन्स कंसंट्रेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. दिस मीन्स K कैन ऑल्सो बी रिटन एज ATM 1 minus n second inverse. So this is unit of rate constant. Clear? This is all about for this video. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मींस बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर? बाकी स्टे सेफ. आपको मालूम ही है, वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. क्लियर? स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.